फर्स्ट टेक में करूँ? ट्राई कर लो। 3 2 मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं पढ़ूंगी। ये हो गया यार। This is cheating. Ashima Jain is annoying. कर लो। Opinions, etc., etc., etc. नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगी। We are doing it again. We are doing it again. नहीं हो गया। चलो अब मैं तो अनकंफर्टेबल हूँ। चालू करो। थर्ड एंड फाइनल। Hello, Assalamu alaikum. Welcome to the 3 AM Call, a podcast where two friends from opposite ends of the Indo-Pak border get together to discuss with you their stories, their opinions, their rants, their realities, etc., etc., etc. I am Rafia Jafar and with me is Ashima Jain and we are your hosts for this podcast. So, Ashima Jain, what's up? You did not. This is just to inform everybody. This is the second take, and Ashima has still not prepared an answer for what's up. She rejected the first take because I asked what's up, and she had no answer. And I'm not going to do this again. We're going to go forward with this. Have you thought of what's up? So today's topic is. यार मेरे पास WhatsApp के बतेरे आंसर हैं। I'll tell you what's up. हाँ चलो ठीक है। मैंने फाइनली राजी देख ली। राजी। गुड फॉर यू। वैसे कौन से साल की? यार वैसे वेट बिफोर वी गो टू राजी, तुमने आलिया भट्ट की रालिया वेडिंग पिक्चर्स देखी क्या? यार there is something disturbing. I don't know, आजकल मेरा कुछ इमोशनल सीन ऑफ चल रहा है क्या? I just cannot feel the chemistry. I don't. You are not supposed to feel the chemistry. They are supposed to feel the chemistry. The people getting married, they are supposed to feel the chemistry. Of course, nahi. Astaghfirullah. Oh, good. That's correct. Good pronunciation. Much better than Alia Bhatt's pronunciations in Razi. Ji janab. But you don't when you see really cute pictures of a couple, don't you feel their chemistry? No, I am normal. अच्छा, तुम तो वैसे इमोशनली ऑफ हो मुझसे भी ज्यादा। तुम छोड़ दो, लोगों को होती है, इसीलिए तो वो पागलों की तरह देखते हैं। यार देखो ना, कपड़े देखने तो हमें मुझे कपड़े देखने में मजा आता है। That's the only thing I enjoy. I only enjoy watching their attire. People gush over celebrities because when they look at their couple pictures, it makes them feel warm and mushy inside. बल्कि मेरे को तो उल्टा होता है कि भाई सबकी शादियां हो रही है, सबके पास कोई ना कोई आजू बाजू वाले लोग भी शादी कर रहे हैं अब तो। बल्कि दैट इज मोर सैड कि सेलिब्रिटीज वगैरह आपके आजू सब शादियां कर रहे हैं, यहाँ पे कोई रणबीर कपूर, लेकिन लड़कों की तो क्या हो जाती है। रणबीर कपूर जैसे प्लेबॉय की हो गई 40 साल की उम्र में, तो फिर हाँ बोलो। अरे उसका एक मीम आया था कि रालिया कपल ओनली इनवाइटेड सर्टेन पीपल इन द वेडिंग बिकॉज इसके अलावा तो सब उसके एक्स थे रणबीर कपूर। That is so true. हम ये भी डिस्कस करते हैं। Anyways, if I go into this, तो मैं बोल like we will go on and on about this. But हाँ, मुझे जो है I don't like that couple and frankly I find Ranbir Kapoor with the knowledge of all his history very disturbing, and especially because she is so much younger. So I feel like I don't know. I don't want to talk about it. I don't think age is the problem here. This is for me. मुझे ये मसला नहीं है. But I just think that she can do better than Ranbir Kapoor. Yes, सुनो मेरा ये issue है age से कि fine. Age is just a number, Bollywood and love and blah blah. But that love only happens when the ladka is 10 or 12 years older. Mostly, this is a trend. I mean, बहुत ही कम कोई होगा, कोई एक प्रियंका ऊपर से है ना, Piggy Chops तो उसे support. हाँ. Yeah, I mean that is the only option. Yeah. But generally it is mostly happening कि भाई जो है लड़के बहुत बड़े-बड़े होते हैं and they keep getting those roles.
सॉरी हाँ keep going. और वो पेयरिंग भी ऐसे ही होती है बॉलीवुड में कि इतनी छोटी सी लड़की और इतना बड़ा सा शाहरुख लड़का खान देख लो, रोमांसिंग गर्ल्स हाफ हिज एज, अक्षय कुमार हाँ। एंड ऑल दिस. बल्कि इसका दूसरा देखने तो- को नहीं मिलता. यू नेवर सी गर्ल्स फीमेल the flip side, yeah, even in their Flip so side. even in their marriages you don't see the flip side. If age is just a number and this has nothing Yeah. to do with objectifying women, then True. why don't we see it the other way around? True, and there are so many good women actors who are young but वो इतने खतरनाक रोल प्ले करती है. सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे दिमाग में आता है शेफाली शाह. तुम्हें पता है कौन है? जो दिल धड़कने दो में उसकी मदर होती है, प्रियंका चोपड़ा और रणवीर हाँ, सिंह की हाँ, मदर. हाँ, शेफाली she's so शाह, good. Yes, such a yes. brilliant actress. She is not very old. और बल्कि this is like 10 years, 12 years back when she was like 10 years younger than what she is now. She played Amitabh Bachchan's wife. अक्षय कुमार की मम्मी. डू यू नो दैट मूवी वक्त आई थी एक? आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट हाँ मूवी हाँ वक्त. हाँ मैंने देखी है. वक्त was popular. उसमें दैट इज वो शेफाली शाह होती है, अमिताभ बच्चन की वाइफ. हाँ हाँ हाँ. God, she's been playing a mother for so long. So long. God. And she's such a brilliant actress. So adding to the problems of Bollywood. Bollywood. I think Bollywood. सबको समझ में आ ही गया होगा कि what we are going to talk about. सबको सुनने के बाद that we are from the Indo-Pak border. Not border, but we are from Yeah. Indo-Pak country, so everybody knows that what is going to come on now. नॉट टू मेंशन कि हम जब रिकॉर्ड करें हमने टाइटल नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब लोग क्लिक करेंगे एपिसोड पे नीचे टाइटल होगा तो उनको पता होगा हम किस चीज़ में बात करेंगे. I mean, okay. That did you? Okay. You didn't have to say that, but ठीक है, fine. I have to make it funny. तो किसके एक्सपेंस पे करूँ? तुम्हारी एक्सपेंस पे करूँगी, तुम मेरे एक्सपेंस पे नहीं करती. Anyways, so we're going to talk about Bollywood and its nationalism. What is like your जो cinema कि- called? Bollywood. मतलब It's words. I don't know why it's called that, and I don't know why we have to, what is Lollywood. Lollywood. Why? Because Lahore. पहले लाहौर में होता था, अब तो कराची में आई थिंक ज़्यादा इंडस्ट्री, लेकिन पहले लाहौर में होती थी तो लॉलीवुड. बट मतलब अभी भी कुछ लोग रिफ़र करते हैं, बट जितना पॉपुलरली बॉलीवुड को रिफ़र किया जाता है इस तरीके से इतना लॉलीवुड को नहीं किया जाता. एंड इट्स वियर्ड. व्हाई कांट वी जस्ट कॉल इट द पाकिस्तानी सिनेमा और समथिंग लाइक दैट. मुझे इससे मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया. बॉलीवुड मतलब बॉलीवुड इज अ ह्यूज थिंग इन पाकिस्तान, राइट? यू गाइज आर इनटू Oh yes. इंडियन Oh, मूवीज, yes. यू गाइज आर Yes, इनटू yes. बॉलीवुड. We grow up पर उसके on, बाद of भी course. इतना ट्विस्टेड रिप्रेजेंटेशन है. मतलब इतना Yeah, बड़ा I मार्केट है remember. बॉलीवुड का. This उसके is a बाद भी point I इतना wanted ट्विस्टेड to make रिप्रेजेंटेशन. कि जो जितना नेशनलिज्म बॉलीवुड में बढ़ गया है, जितना अजीब जितना कैरिकेचराइज करके और जितना आई डोंट नो स्टीरियोटिपिकली वो पाकिस्तान को पोर्ट्रे करते हैं, तो ऑब्वियसली और स्पेशली जो आजकल मोदी के बाद द वे इट्स बिकम वर्स द नेशनलिज्म एट्सेट्रा. तो येस आई थिंक दैट इट्स नॉट दैट इस बॉलीवुड की पॉपुलैरिटी यहाँ कम हो जाती है. मतलब नाउ दैट वीव ग्रोन अप और नेटफ्लिक्स वगैरह आ गया है, तो लाइक people from a certain socio-economic background and of a certain age have gone towards alternative media. Lekin overall, if you look at the masses, if you look at older people, Bollywood is still there, The thing. very popular. And obviously that's why that hurts more, that because for us we have always okay, मैं नहीं कहना चाह रही हम बहुत अच्छे and आपके problems, I don't want to go into that narrative. It's just that I feel कि because we've consumed a lot of Bollywood and at one point, अब इतना नहीं होता, at one point when we were younger, Star Plus वगैरह, तो we always had a window into India, so we could always humanize Indians. And the opposite is not true. ठीक है, हाँ थोड़े पाकिस्तानी ड्रामे थोड़ा बहुत ये वो होता है, बट यू डोंट हैव दैट कांस्टेंट विंडो इनटू पाकिस्तान दैट वी डिड. दिस पाकिस्तानी ड्रामा ना ये भी बहुत लेट चालू था. आई रिमेंबर मैं स्कूल में थी, मतलब मैं 9th या 10th में थी, तब वो ना एक चैनल चालू हुआ था, जिंदगी करके एक चैनल चालू हुआ था टीवी पे, जिसपे ना पाकिस्तानी टर्किश ड्रामे आते थे. तो दैट वाज माय फर्स्ट इनकाउंटर विद पाकिस्तानी ड्रामास. और सबसे पहला हमने पाकिस्तानी, मैं और मम्मी ने बिंज वॉच किया था जिंदगी गुलजार है. तो दैट वाज माय
that was how You started off on a high, उसके बाद काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट ही रही होगी. उसके बाद तो हम सफ़र वगैरह, हम सफ़र भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था, बट खैर मैंने फवाद खान के लिए, मैंने मम्मी ने दोनों ने देख लिया उसको. ज़िंदगी गुलजार तो काफ़ी बेटर था, बट दैट वाज माय विंडो इनटू पाकिस्तानी ड्रामा. उसके अलावा मुझे नहीं पता था. द ओनली रिप्रेजेंटेशन आई हैड ऑफ पाकिस्तान was to these war movies. Like the only representation I had known abhi tak was Pakistan, its Pakistani military, and the fight we had with Pakistani. We have with Pakistan and its military. These were the only motives we had of Pakistan growing up. And growing up kya abhi bhi. So then you don't, so then you don't humanize the other. Na? It's very easy to make it into the enemy, the other into the enemy. क्योंकि रियलिटी तो आपको देखने का कोई ज़्यादा चांस ही नहीं है. और फिर इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ दैट फॉर पॉलिटिकल मोटिवेशंस. और फिर लोग बहुत इजीली ट्रिक हो जाते हैं व्हेन लीडर्स लाइक दैट यू मेक द अदर द एनिमी. ठीक है. और उनको दे प्रेजेंट देमसेल्व्स एज द सेवियर व्हिच बेनिफिट्स नोबडी. इट बेनिफिट्स नो पॉपुलेशन किसी भी साइड की, जो भी लीडर ये कर रहा हो. इट जस्ट बेनिफिट्स द पॉलिटिकल मोटिवेशन ऑफ दोज पीपल के हेट्रेड भर दो. And hatred sells because then people kind of feel better about themselves. कि, oh, that is the enemy and somebody will protect me. ठीक है. True. So this is unfortunately, despite Bollywood being all, you know, Western liberal type ka, you know, like you see how hollow all that is. I would exactly it's say not like it's very conservative and संस्कार type जैसे पुरानी movies होती थी. मतलब इस तरीके से एक liberalization हुई है ना. That is a generation. रोमांस वगैरह की. Yeah, but then you see how that is hollow because जो actual values होनी चाहिए you know progressive किस्म की, वो तो है नहीं. आप तो nationalism ही बेच रहे हैं. You are becoming a tool for the state to propagate hate. That is not true for all the movies, but but by and large Bollywood has followed that pattern. The mass commercial movies, I won't exactly say that they are representing some twisted kind of culture. ये तो नहीं कहूँगी, but when it comes no, I didn't talk about culture. You said something. You said about values like. हाँ, मतलब मैं कह रही हूँ जिस तरीके से रोमांस प्रेजेंट हुआ है ना. फॉर एग्जाम्पल जो अगर तुम हम साथ साथ हैं को देखो, ठीक है, वेरी कंजर्वेटिव संस्कारी वैल्यूज, एंड देन यू सी दैट देयर इज अ ट्रांजिशन. और जिस तरीके से रोमांस, बिकॉज बॉलीवुड, लेट्स फेस इट, इज बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट इज रोमांस, राइट. तो जो जिस तरीके से रोमांस है वो थोड़ा उसकी प्रेजेंटेशन काफ़ी डिफरेंट हो गई है. इट्स नॉट द होल सेम कि अच्छा भाई फैमिली के साथ जुड़ा हुआ या ये वो, काफ़ी एक इंडिविजुअलिस्टिक. और it's fresher, it's newer, it relates to the younger crowd differently if you look at the newer movies. ठीक है. It's not about संस्कार and अच्छा बहू आ रही है और इस किस्म से वो conservative नहीं है. This is what I'm talking about. लेकिन the thing is कि ये जो एक liberalization आपको नज़र आती है ऊपर से, it is very ऊपर से, because since ये मोदी वाली wave आई और हमने देखा कि अच्छा nationalism बिक रहा है तो they bought into it. किस तरीके से, ठीक है, जो मूवीज बना रहे हैं. It's not just about Modi. It's not just about Modi. जैसे when I was reading about रिसर्च करी थी मैं एपिसोड के लिए, ये चीज़ मैंने भी रियलाइज़ नहीं करी थी. फर्स्ट थिंग, आई वॉज टू यंग टू रियलाइज दिस, बट लेकिन मैंने इफ़ आई वॉच पुरानी मूवीज़ तो मुझे भी रियलाइजेशन नहीं था. मुझे पढ़ने के बाद ये चीज़ हिट हुई कि ना जब पार्टीशन हैपन, और पार्टीशन के 3 साल बाद तक, 3 डेकेड्स बाद तक भी जितनी मूवीज़ थी ना, दे नेवर पिक्ड अप ऑन दिस थीम ऑफ इंडो पाक, बिकॉज इट वॉज सच अ सेंसिटिव टॉपिक. तो कोई भी मूवीज़ आई नहीं थी ऐसे. देयर वर मूवीज, जैसे मैंने 1-2 के नाम पढ़े थे, पुकार वगैरह, मैंने देखी नहीं मूवीज़, मैंने सुना है इनके बारे में, बट दे वर टॉकिंग अबाउट दिस थीम इन अ वेरी स्लाई मैनर. एकदम डायरेक्टली इस चीज़ के बारे में बात नहीं होती थी. फिर 1980s के बाद से दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द पार्टीशन. एंड पार्टीशन के अलावा दे वर नॉट एक्जैक्टली टॉकिंग अबाउट पार्टीशन ऑल्सो, दे स्टार्टेड पोर्ट्रेइंग दिस थीम ऑफ पाकिस्तान मूवीज़ में एंड इन दिस ट्विस्टेड मैनर. तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मोदी, इट स्टार्टेड वे बैक 1970s 1980s में. उसके बाद से रिप्रेजेंटेशन बदला ही नहीं है. तो पार्टीशन के 3 डेकेड्स बाद तक तो इन्होंने नहीं करा, क्योंकि फटी पड़ी थी. दे डिडंट न्यू हाउ टू डील विद दिस टॉपिक बिकॉज इट वाज सो न्यू एंड इट वाज सो रॉ. तो दे डिडंट. बट उसके बाद से 1980s के बाद से दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट इन दिस ट्विस्टेड मैनर. अगर अपन मूवीज ही देख ले, कितनी ऐसी मूवीज हैं इंडो पाक थीम पे विच आर
not talking about this war or military. अपन उंगलियों पे गिन सकते हैं, वो इतनी कम है. जैसे बजरंगी भाईजान is one, it is talking about this Indo-Pak relationship, but not in a very military sense of the way. There's Veer Zara also, जिसमें पाकिस्तानी लड़की है. But Veer Zara मेजर ही होता है ना, उसमें वो आर्मी वाला ही होता है. But उसकी अलग प्रॉब्लम्स हैं, उसकी अलग प्रॉब्लम है वीर ज़ारा की. तो मैं उसको भी twisted representation. देखो वीर ज़ारा और बजरंगी भाईजान में भी एक कॉमन थ्रेड ये है कि even when you do talk about Pakistan, it has to be in a way that presents an Indian as a hero. Yeah. It has to be an Indian as a hero. It can't be on an equal footing. It's a different form of white man's burden. It's like a Hindu man's burden. Because कितनी सारी मूवीज है, तुम गदर उठा लो, वीर ज़ारा उठा लो. खैर गदर और वीर ज़ारा में तो बहुत टाइम गैप हो गया. I'm sure उसके बीच में और भी काफ़ी मूवीज होंगी which can fill the timeline. But इन सब में जो पाकिस्तानी character है, the female playing the Pakistani woman, she's very beautiful, she's this exotic beauty, and the guy, the Hindu guy, is the savior. He's supposed to save her from her own the people. Savage Muslim man who is savage Muslim man. So it's like a different thing of ये वो भी white एक man's colonial body. thinking है, जिस तरीके से white man looks at the brown man as savage Man. और फिर वो उसमें brown Hierarchy. woman को भी use करता है. हाँ. Chronology समझिए. It's like So white man, brown man, brown intersectionality है Hindu, brown भाई. Muslim. हाँ, intersectionality का एक ये thread ये भी है कि when we But break it down. that hierarchy like that is in India के brown हिंदू ऊपर और brown मुस्लिम नीचे. But obviously जहाँ majority shift होती है, power shift हो जाता है और पाकिस्तान में फिर brown hierarchy change हो सुन्नी जाएगी. man ऊपर आता है, नीचे फिर दूसरे आते हैं. But लेकिन when it comes to Bollywood and representation of these heroes, एक तो वैसे ही हीरो कॉम्प्लेक्स बहुत खतरनाक है बॉलीवुड में. सारे हीरो ही सारी ये औरतों को बचा लेंगे, उनके साथ बहुत ही बुरा हो रहा है, बट ये हीरो ही आके डिशुम डिशुम करके वेरी ओवरटली मैस्कुलिन हीरोज ये आके बचा लेंगे. गदर में हैंडपंप उखाड़ लेता है. भाई मुझे तो नॉर्मल लगेगा ऐसा आदमी. भाई तो क्या खाता है? डर लगे ऐसे बंदे से, डर लगे ऐसे आदमी के साथ कि तुझे हैंडपंप निकाल लेता है. तू भाई दूर ही रहे, तू दूर ही रहे. सोशल डिस्टेंसिंग. तो हमेशा से रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही तो हमेशा से वो उसका भी ऐसा ही. सलमान खान का सॉरी वीर ज़ारा वाला कौन है? शाहरुख खान का भी यही है. प्रीति जिंटा के साथ जो एग्जॉटिक से ब्यूटी लगती है उसको, अरे ये तो कौन सी हूर की परी आ गई और मुझे उसको बचाना है बिकॉज उसका पति गोरी होती है. हमेशा पाकिस्तान की लड़की गोरी होती है. इट्स द कलरिस्ट फैंटेसी आल्सो ऑफ द इंडियन मैन ना. वैसे अगर मैं गोरी सी होगी वहाँ बॉर्डर के उस पार और उसका बहुत सख्त सा बाप होगा और उसका बहुत ही जालिम सा फियांसे होगा और मैं उसे असली मोहब्बत सिखाऊंगा क्योंकि मैं बॉलीवुड हूँ और मैं शाहरुख खान हूँ. शाहरुख खान. मुझे गोरी से याद आता है, अगर अपने ना कोई देसी लोगों की बातें आके सुन ले इस कलर कॉम्प्लेक्शन के बारे में तो कोई भूल जाएगा अपन ब्राउन है. वी आर नॉट ब्राउन. इफ वी आर जिस तरह से अपन काले गोरों की बात करते हैं, अरे बड़ी काली है, बड़ी गोरी है, ब्राउन तो कभी होता ही नहीं है. सारे ही ब्राउन है लेकिन हमारे अंदर भी हायरार्की जो हमारे अंदर भी किसी को ऐसे कोई आ जाए कि चलो कोई नया किसी नए देश से आ जाए, वो आके बाद जिसको कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता देसी कल्चर के बारे में, वो आके this colorism is also in Pakistan in the sense India के साथ नहीं within ourselves नहीं. जैसे पाकिस्तानियों को ये जो आइडिया है ना कि पाकिस्तानी खूबसूरत होते हैं, ठीक है, a lot of that has to do with the fact that there are many Pakistani, especially because this side of the border जो वो communities हैं, जो ethnicities हैं, they are lighter skinned than ethnicities on that side of the border. ठीक है, like Pathans इस side पे हैं, they are lighter skinned. Bengalis generally are not. ठीक है, Punjabis are lighter skinned, वो इधर majority हैं. अगर उस तरफ के आप साउथ वगैरह में चले जाओ तो they are generally not. तो ये जो आइडिया जो यहाँ पर भी है ना कि ओ लोगों में होता था ये कि ओ एटलीस्ट वी लुक बेटर देन इंडियंस. आता जाता कुछ नहीं, मुल्क का तबाह है लेकिन एटलीस्ट वी लुक बेटर देन इंडियंस वाली कुछ जो गोरे हैं. अब मैं इतना नहीं सुनती लेकिन पहले जो होता था इट हैड अ लॉट टू डू विद कलरिज्म. एंड फिर इसी तरीके से इंडियन साइड पे भी दिस आइडिया कि वो पाकिस्तानीज खूबसूरत होते हैं has to do with colorism and their preference for lighter skin tones. True.
सो या इस वजह से जो बॉलीवुड में लड़की आती है तो वो अमीषा पटेल प्ले करेगी या वो प्रीति जिंटा प्ले करेगी क्योंकि वो गोरी होगी ना, जैसे वो बच्ची भी गोरी होती है जो बजरंगी भाईजान में आती है। हाँ मेरे जैसे भी होते हैं, दीपिका को भी लो भाई, मुझे दीपिका पसंद है। this point, there is one point I have to make that we are talking about this savior complex कि औरतों को बचाना होता है. So this is very academic point I will make, but this also boils down to having to save the females. जब partition happened 1947 तो मैं भूल गई क्या, I वापस चालू करूँगी मैं. तो जेंडर स्टडीज में we were reading on essay. It was called The Figure of Abducted Woman. नाम ध्यान रखना, The Figure of Abducted Woman. It was written by वीना दास. उसके साथ हमने एक बुक भी पढ़ी थी अलग से. It was called The Other Side of Silence. इसका भी नाम याद रखना because the names are very heavy in itself. तो this Other Side of Silence was written by Urvashi Butalia. तो जब partition happened, there were a lot of families and there were a lot of women who lost their home and they ended up on the wrong side of border because partition हो रहा था, but फिर भी women were abducted, tortured, rape. ये सब this was happening. This violence in the battles of men's egos, women will always be collateral damage. हाँ, just extempore बोला मैंने. Okay. है ना? So this was happening. This violence against women was happening. ठीक है? अब now partition happened. The whole thing happened. So now they were trying to recover, in quotes, restore their women. तो बहुत सारी organizations बनी थी. There were a lot of NGOs who came up and they were trying to do this work, restoring their women. So now in all the women who were restored, they were focusing on only restoring women who were in their reproductive ages. They left out women who were old and very young girls. They only focused on restoring, bringing back women who were in their reproductive ages because these were the women who were supposed to come back, bear children and legitimize the new nation and its identity. They were supposed to come back और बच्चे पैदा करके because these were the newly built nations. They wanted to legitimize it, उसको valid करना था. तो they focused on these women. ठीक है, और a lot of the times women were not ready to come back because जिन आदमियों ने उनको abduct करा था, they married them and they had new children. now they had a new family. So they were खुद से not very insistent on going back, and lot of the times women who returned, their family refused to take them back because now they were married to a man from the other side, a man from another religion. So these people, they refused to take back women of their own house because वो तो अब pure नहीं रही थी. I know the trauma we all must be carrying within us, that intergenerational trauma which we are not even aware of. I can't even मतलब सुनते हुए भी it's so painful. I don't know what living through it must be. So this is the reality of what our nations are built on. True. The lives of women and how they were so easily discarded because you wanted to build these new nations. और नहीं like जैसे भारत is भारत माता, तो you are referring to it as भारत माता, और फिर उस माता की क्या हालत कर दिया है आपने. It was not just then. I mean, we still know the kind of violence we have against women, but ये तो बहुत ही extreme था. And remember I told you कि ना नाम याद रखना. So this other side of silence, she is calling it silence because trauma इतना intense था. So it's a non-fictional book, but उसने उर्वशी बुटालिया ने बीच में से instances of the stories दी हुई है कि जो readers को भी पता, like to humanize the whole traumatic incident which happened, because as a reader एक थोड़ा सा you are supposed, like as a reader you are just reading it to humanize it, to make you sympathize with them. तो बीच में काफ़ी ऐसे personal incidents उसने mention किए थे. So she was talking about this old lady. She was Pakistani, but वो India में she ended up in India. She didn't go back because her family refused to take her back. ठीक है, तो this Indian man she was married to, उनकी शादी थी, उनके काफ़ी बच्चे भी थे.
and she was raped and she was tortured, उसके ज़बरदस्ती शादी कराई गई थी. She stopped speaking altogether. She didn't speak at all. वो communicate ही नहीं करती थी लोगों से because she had no appropriate language to talk about her pain. तो वो बस ना ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें ना gibberish utter करती रहती थी. And वो अपने रूम के क्लॉजेट में बैठी रहती थी और वो ऐसे बस गिब्रिश अटर करती रहती थी बिकॉज शी हैड नो वर्ड्स टू टॉक अबाउट हर पेन. सो these are the kind of stories we have from partition. ठीक है. और अभी तक भी people are अभी तक भी partition happened in 1947. This is 2022. People are still trying to find their families. Still. There are a lot of archives, there are a lot of online databases और बहुत सारे NGOs अभी तक भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं. They are trying to bring families together who were separated during partition. ये काम अभी तक हो रहा है. But लेकिन किसी को पता है ये काम हो भी रहा है. मुझे भी इसलिए पता चला because I was reading about it, because I was studying about it. मुझे नहीं पता था इसके पहले ऐसा काम हो रहा है. So this is also one side of partition. This is also one side of this whole Indo-Pak war. But लेकिन movies में क्या representation देखा है अपन ने? Movies में तो हमेशा यही देखा है हमने. Growing up, this is what I saw always. कि Pakistan. So there is so much shared history, of course. There is so much shared trauma. But is this represented in movies? There is such a complex relationship, and all we can manage to reduce it to is war and I'm the hero, and yeah, you're just continuing the violence that happened at partition. You're continuing the violence that the colonizer imposed on you. And we have all become colonizers within ourselves, and we refuse to let go of that pain. We keep inflicting it on ourselves and we keep blaming each other. और उसी trauma के cycle में हम फंसे हुए हैं, where we keep hurting each other and we refuse to sit down and stop. We refuse to see the other side. I mean, chalo, war, I don't expect politicians to understand it. I don't expect militaries to understand it. I know कि वो दोनों एक दूसरे के मुल्कों में सीक्रेट ऑपरेशंस करते रहेंगे, कश्मीर को एक ऑब्जेक्ट बना के अपने ईगो की वॉर्स लड़ते रहेंगे. ठीक है. They don't give a shit about nobody. I'm sorry, you might think of yourself as in, you know, such a nice, amazing Pakistani, pure-hearted, or oh, such a just Indian. But none of us give a crap about the actual people suffering in the lands which are occupied. ठीक है. वो हमारे ईगो के मसले होते हैं कि ओ जो इंडिया से बलोचिस्तान का बोल देते हैं या पाकिस्तान से कश्मीर का बोल देते हैं. Nobody really gives a shit about those actual people. Because otherwise you would hear what those people living there would have to say. You're not interested. आप आपस के लड़ाई झगड़ों में interested हैं. ऐसे narratives बताए ही नहीं गए हैं लोगों को. And I'm not denying कि ऐसे narratives हैं नहीं, but they are not easily available. ये जो mass produce commercial movies है, ये बहुत बड़ी. These are huge things in India. There are a lot of people who blindly follow. There are huge things in Pakistan. Bollywood is a huge thing in Pakistan. So art से तो you expect ना, art से you expect love, you expect healing, you expect an exploration of the trauma, you expect an exploration of the history. But what are you using that art for? बजरंगी भाईजान was not violent. ठीक है, बजरंगी भाईजान ने ठीक है एक equal footing पे इंडिया पाकिस्तान को नहीं दिखाया. उसमें इंडियन फिर भी सेवियर था. But still it was a movie that was based on love. अगर if you take that as the starting point and go forward, it was very very successful in both India and Pakistan. But you cannot. But अब जो especially हो रहा है उसके बाद तो you cannot seem to find any angle except war. When you have so much power, why would you give your power to the very same forces who are जो hatred फैला रही हैं? I mean, people from India and Pakistan have collaborated. So even if the common Indian man cannot demonize Pakistan, Bollywood can. Bollywood can. Bollywood is crazy about Atif Aslam. हाँ अब नहीं करने देते, but they have collaborated ना. Bollywood is crazy about Fawad Khan. Bollywood is crazy about Atif Aslam. ठीक है ना. तो फिर आपने why haven't you been able to find it in yourself to find a better angle? Even if political लोग आपको collaborate नहीं करने दे रहे, you can find better stories, can't you? लेकिन अब पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात. Now you're using Bollywood against your own Muslims. I mean, look at Padmavat, ठीक है. Padmavat. And also, I have one point to make. I have one point to pick.
और these big Bollywood heroes who are supposed to be the carriers of Bollywood, अभी तक सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये कितना this is so ironical, absurdly ironical. मतलब I mean, few people have done for Bollywood globally what Shah Rukh Khan has done. Everybody is crazy for his romance. Everybody Salman knows Khan, about चाहे Shah हमें Rukh जितना Khan. भी बुरा लगे, we know how popular he is. I know how popular he is in पता है एक बार Pakistan. ना मैं फेसबुक पे नहीं ऐसे रैंडमली स्क्रॉल करी थी, तो बिकॉज अपन दोनों एक दूसरे से बहुत कंटेंट शेयर करते रहते, तो आई थिंक आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी कंटेंट नाउ, बिकॉज अपन हमेशा एक दूसरे को अपन को टैग करते रहते थे. आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ दीस ऐसे छोटे छोटे वीडियोज नहीं होते, लोगों से बात कर रहे होते हैं वो लोग, ऐसे इंटरव्यूज होते हैं, ऐसे रैंडम वीडियोज. तो एक वीडियो आई केम अक्रॉस वन वीडियो, तो पाकिस्तान, आई थिंक इट वाज कराची, तो ही दिस स्पीकर ही वाज गोइंग अराउंड आस्किंग पीपल ऑन द रोड दैट डू यू वांट टू गो टू इंडिया. तो क्या, और किसी लोगों ने हाँ बोला कि हमें इंडिया जाना है, तो उसने बोला क्यों जाना है, तो पीपल हैड थिंग्स टू से लाइक हमें सलमान खान को देखने जाना है, हमें शाहरुख खान को देखने जाना है. So this was one reason people wanted to go to India. हाँ, because they wanted to see सलमान खान से ऑटोग्राफ लेके आना है, सलमान खान के साथ पिक्चर फोटो खिंचवा के आनी है. और काफी लोग, पता है एक आदमी ने तो ये बोला कि मुझे जाके ना बम से उड़ा के आना है इंडिया को. I know. And then there were people who wanted to come to India, wanted to come for Salman Khan, Shah Rukh Khan. So मतलब do you see how big role Bollywood was playing? So don't you think they should realize their responsibility of providing these different kind of narratives? Because masses के लिए I'm not denying कि दूसरा narrative नहीं है, I'm not denying, but वो easily accessible तो नहीं, easily accessible तो नहीं है ना. That is very important. And then now that I'm thinking about it, तुमने जब कहा ना they should realize their responsibility, मेरे दिमाग में रणबीर और आलिया आए, और मुझे ये दिमाग में आया कि look at the lives these people lead. इनका सारा सोशल सर्कल, इनकी ज़िंदगी की शुरुआत और एंड इतने प्रोटेक्टिव बबल में होती है, इतने ज़्यादा कि वो तो अपने खुद के मासेस से कनेक्ट नहीं कर पाते. आलिया भट्ट को ये समझाना मुश्किल हो गया था कि वाई नेपोटिज्म इज़ अ प्रॉब्लम. शी रिस्पॉन्डेड विथ आई वर्क सो हार्ड एंड आई डू दिस. तो नोबडी इज़ डिनाइंग आलिया भट्ट्स टैलेंट एंड नोबडी इज़ डिनाइंग हार्ड वर्क ऑफ आलिया भट्ट, बट शी couldn't get beyond that why nepotism is a problem. She can't get the basics of privilege because again privilege is blinding. तो जब उनको अपनी ये बेसिक मसले समझ नहीं आते because of how protected they are, and Bollywood is a rich kids club. It is not, मतलब I know अब थोड़ा सा वो खुलना शुरू हुआ है कि चलो we saw तापसी पन्नू जैसे लोग, या सुशांत सिंह राजपूत, who was the guy, हाँ सुशांत सिंह राजपूत वगैरह. So राजकुमार राव है, पंकज त्रिपाठी, कौशल भी तो कोई बहुत बड़े बैकग्राउंड से नहीं आया, और वो क्या नाम है उसका, can't believe I don't remember, I can't आयुष्मान है. या मेरे को तो पागल लगता है आजकल, वो आजकल कैसे ड्यूटी से बातें जो भी है, बट आयुष्मान isn't coming. The idea that these are popular people who do not come from these big backgrounds, तो ठीक है थोड़ा सा बॉलीवुड खुलना शुरू हुआ है धीरे. But then this is after ages. बहुत बड़े हो गए, अब जाके अपन देखना चालू कर. जब अपन ग्रोइंग अप तो अपन ने बॉलीवुड क्या देखा था, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अपन इन सब के बारे में बॉलीवुड देखा था, करण जौहर, और इन्हीं के बच्चे अभी भी इनके बच्चे आते रहते हैं. लाइक स्टार किड्स वाली कहानी है कि भाई इसका बच्चा है तो दिस विल सेल, ठीक है. तो जब वो जो सोर्स है उसकी वो इतनी प्रिविलेज्ड है और आपस में ही कनेक्शंस हैं और आपस में ही नेटवर्किंग है, तो आई डोंट थिंक दे आर रियली गोइंग टू द ग्रास रूट्स एंड टेकिंग स्टोरीज from people who genuinely have a voice. तो जब वो वहाँ पर जा ही नहीं रहे, तो I'm sure there are so many people in India like you who have really good connections with people in Pakistan, right? And I'm sure some of them are writers, but do we have this system in Bollywood where you actually go and get scripts from लाइक फ्रेश स्क्रिप्ट्स? मतलब ज़्यादातर तो बॉलीवुड की स्क्रिप्ट्स तो वो अपन को तो निशा से मिलने के बाद पता चला कि सारी तो जो मूवियों में अच्छी लगती है वो तो छापा है, बट तमिल का और छापा भी कैसा, इट्स नॉट लाइक स्टोरी छाप ली भाई, फ्रेम बाय फ्रेम छापे हुए हैं, गानों के पूरी मेलोडीज छापी हुई हैं,
जब इतना अच्छा है। और पता भी नहीं था भाई, मेरे को भी नहीं पता था। मैं तो इंडिया में रहती हूँ भाई, मैं तो बॉलीवुड के आसपास बॉलीवुड फिल्म, मुझे नहीं पता था कि छापी हुई मूवीज है। आई मीन ऑल द छापामारी आई न्यू वाज कि चलो ये हॉलीवुड मूवीज छापी हुई है। आई नेवर न्यू कि टॉलीवुड मूवीज भी कितनी सारी होती है कि जो छापी हुई हाँ, मतलब साथिया यहाँ मुझे पता ही नहीं था। उस वक्त विवेक ओबरॉय इतना मशहूर था, उसके गाने लूप पे चलते थे हमारे यहाँ। मुझे गाने याद है साथिया के, बचपन में इतनी देखी। आई डोंट नो अबे उसका गाने की जो वीडियो है, गाने की जो म्यूजिक वीडियो, उसका भी पूरा कॉन्सेप्ट छापा हुआ है कि हाँ उसी तरीके से बास्केटबॉल खेल रहे हैं और उसी तरीके से अपने टूटे-फूटे मकान। द एक्टर जो उसका जो ओरिजिनल मूवी उसमें आर माधवन इज अ वेरी ही इज अ बिग थिंग एंड ही यूज्ड टू बी बिग थिंग इन बॉलीवुड। उसके बावजूद भी नहीं पता था, इतना बड़ा एक्टर के बाद भी नहीं पता था। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मुझे सारे पता, मुझे नहीं पता होता साउथ इंडियन हीरोज के बारे में। ओनली a few who managed to come. I only know about वो मेरी खुद की ignorance मैं मानती हूँ। I only know them because they managed to come into Bollywood. इसलिए मेरे को पता है उनके बारे में। मतलब I never made the effort of going and checking them out. मुझे उनके बारे में इसलिए पता है क्योंकि वो बॉलीवुड में आ गए, इसलिए मैं जान पाई उनके बारे में। तो वो बहुत ही छोटा सा बबल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर people from acting industry itself to come into Bollywood. It is very difficult. Yeah, so it's like North Indians, अमीर बहुत ज़्यादा एक अमीर North Indians जिनकी families उस business में रही हैं for years. This is what basically Bollywood is. All these new heroines we have right now जो अभी नई हैं, सारा अली खान, ये सारी all they come from big parents, no, big actor parents. जानवी कपूर हो गई, सारा अली खान हो गई. A country of 1 billion and you're telling me that the best you have is these star kids? I do not. I don't buy this. Obviously, I'm sure you have a lot better. और बल्कि वो दिख रहा है ना, मतलब OTT platforms पे दिख रहा है, आपको दिख रहे हैं एक्टर्स जो आपके डिजिटल शोज में होते हैं. So that means that there was never a open and clear way for people to come and showcase their talent because Bollywood is not interested. Bollywood is just a monopoly of some rich families. That's it. तो आई थिंक ये एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है कि फिर वो जो लोग अपने मासेस को नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे प्रॉपर्ली, वो एक खैर to be honest I don't really like this division of our masses because I do think despite the borders we're very joined historically or culturally and problems wise the problems of both sides of the masses आज भी are very very similar. तो मतलब but so मेरा तो बॉलीवुड से कनेक्शन है. लाइक आई डू हैव दीज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम जैसे वो मेरी खुद की इंडस्ट्री हो. बट लाइक आई एम ओनली रिप्रेजेंटेड एज आदाब एंड जनाब. दिस इज ऑल आई डू अपेरेंटली. आदाब जनाब. Do you want to say something before I go on this rant? Go on. I don't want to break the flow. Go on. So Razi I really liked a lot. ठीक है. Yeah. क्योंकि I'm sure people picked up different things from Razi, but what I picked up from Razi was this humanization of people from the other side of the border and this realization कि भाई हमने जो enemies बनाए हुए हैं और हम जो ये war करें it's destructive and it is inhumane. Okay. Anyways, लेकिन राजी में भी उसमें चलो ठीक है नॉर्मल पाकिस्तानी तो दूर की बात, उसमें पाकिस्तानी जनरल्स और हाई पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री ब्रास आदाब जनाब करती है. एक तो हम नॉर्मली भी आदाब जनाब नहीं करते. ठीक है, आदाब जनाब इज़ अ वेरी मुगलाई दरबार काइंड ऑफ थिंग आप कह लो, या यू नो जो प्रिंसली स्टेट्स में से उर्दू स्पीकिंग प्रिंसली स्टेट्स में जो ये दरबारी किस्म की चीज़ होती है ऐसे आदाब जनाब करना. ठीक है, मैं तो हूँ भी मेमन, तो मेरी तो रूट्स गुजराती और सिंधी का मिक्स है, तो मुझ में तो उर्दू स्पीकिंग सेंसिबिलिटी या ये एक नज़ाकत तो वैसे भी कुछ नहीं है. ठीक है यार, पाकिस्तान में उर्दू स्पीकिंग लोग इतने से होते हैं, बहुत ही माइनॉरिटी है. वो भी अब जो अर्बन है वो आदाब जनाब नहीं करते. वेट आई ऐड समथिंग. यही तो हमको डेमोग्राफिक्स नहीं समझ में आते पाकिस्तान के. हमको सारे पाकिस्तानी एक जैसे ही लगते हैं. मुझे भी नहीं पता था कि क्लासिफिकेशन होता है कि मेमन गुजराती पाकिस्तानी. पता है, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स बैक होम जो गुजराती बोलते हैं, बट मैंने कभी इतनी कोशिश नहीं करी कि मैं जाके समझूं कि वो गुजराती कैसे बोलते हो और मुस्लिम्स हैं. तो हम लोग को नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान में भी इतनी तरह के वो हो सकते कम्युनिटीज. हमको नहीं समझ में आता. तो बेसिकली इट इज द सेम खित्ता ना.
इट्स द सेम रीजन जिसके टुकड़े हुए हैं. तो जिस तरीके से इंडिया में डाइवर्सिटी है तो वैसे पाकिस्तान में भी बहुत डाइवर्सिटी है, बिकॉज समझ में आता पूरा ही डाइवर्स है ना. ऐसा तो नहीं है कि हमने काट के बोला डाइवर्सिटी आप ले ले और यहाँ बोला चलो मुसलमान, बस नहीं समझ में आता. आइडेंटिटी यही मुसलमान आदाब, बस यही समझ में आता है हमें. और क्लियरली बॉलीवुड में भी समझ में आता है. I should not be laughing. ये मेरे भी ignorance है. बॉलीवुड सुनो, मैं हायर मी एज अ कॉन्सल्ट, मुझे पैसे दो, मैं बताती हूँ असली पाकिस्तान. बहुत सिंपल है, मैं अच्छी मूवी, अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगी, अच्छी मूवी बनवा दूंगी. जो है पैसे दे दो मुझे, आई डोंट माइंड. माइट एज वेल मेक सम मनी आउट ऑफ इट. So, ऊपर से उसके अंदर राजी के अंदर इट्स नॉट जस्ट एनीबडी, इट्स जनरल्स. पाकिस्तान की मिलिट्री इज़ वेरी, एक ब्रिटिश मिलिट्री की कंटिन्यूएशन है ना. वहाँ पर इंग्लिश बोलना, यस सर कहना, जनाब. पाकिस्तान की मिलिट्री वाला जो कि ज़्यादातर अगर टॉप ऑफिशियल है तो बहुत चांस है कि वो पंजाबी होगा, जिसमें वैसे ही कोई उर्दू का कोई ऐसा कनेक्शन नहीं. जनाब नो 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 नो. I understand this point. ठीक है ना. Oh, one more joke. Okay, dear Bollywood, I do not roam around in my home with a jhumar here going adab janab like Umrao Jan. Okay, nobody says janab. You know what? किस पॉइंट पे आई डोंट नो क्या इशू था जिस पर ना कुछ इंडिया से फेक ऑडियो क्लिप्स आई थी किसी पाकिस्तानीज की. इट वाज या तो इंडिया में कुछ हुआ था और वो ब्लेम कर रहे थे शायद पुलवामा में, something like that. And the dead giveaway that it was fake was कि उसके अंदर जो पाकिस्तानी था वो जनाब बोल रहा था, जनाब ये हो गया है. No! अगर तुम्हें प्रोपेगेंडा करना है तो बॉलीवुड देख के तो नहीं करो. जनाब से इधर कोई नहीं बात करता. जनाब बोलते पता चल जाता है. फेक वीडियो बना के वो इंडियन मीडिया चैनल्स पे बड़े बड़े ना घूम रही है कि पाकिस्तान के किसी जनरल ने बोला जनाब हो गया काम. जनाब यार ओके, इन माई डिफेंस, इन बॉलीवुड डिफेंस, ठीक है, जैसे मुझे भी ना ये ऐसे ना उर्दू अल्फाज सुनने में बड़ा मजा आता है. जब वी वर टॉकिंग अबाउट दिस एक्सोटिक पाकिस्तानी ब्यूटीज ना, मुझे लैंग्वेज भी बहुत एक्सोटिक एकदम, मुझे इतना मजा आता है. मैं तुम्हें बता रही थी ना कि मैं आजकल लाइव सुनती रहती हूँ डॉक्टर मोइस के. मैं पता है, एक तो शी इज वेरी ब्रेनी, वो बात तो अलग है, बट लेकिन जिस तरीके से बात करती है ना, शी इज टॉकिंग इन उर्दू सो गुड. उसकी आधी बातें मेरे ऊपर से जाती है, मुझे वर्ड समझ नहीं आते. पता है मुझे बातें कैसे समझ में आती, बिकॉज आई पुट देम इन द कॉन्टेक्स्ट. अगर तुम मुझसे अलग अलग पिक करने को बोलोगे मुझे नहीं समझ में आती, बट मुझे इसलिए मजा आता है बिकॉज मुझे वो वर्ड सुनने में इतना मजा आता है. मेरी उर्दू मुझे अब पता है, मैं धीरे धीरे आजकल तो मुझे मजा आता है उनको बोलने में भी. जैसे मैं तुमसे भी सुनती हूँ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इतने लोग हैं, तुम बोलते थे इतनी आवाम है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट देश, तो तुम बोलती हो इतने, यू टॉक अबाउट देम एज मुल्क. तो मुझे ऐसे आई पिक ऑन मुल्क इज नॉट एन, दिस इज व्हाई एक्सोटिसाइजेशन इज अ प्रॉब्लम. पता ही नहीं. चलो अवाम आई गेट तुम्हें क्यों लगता है, लेकिन मुल्क इज अ वेरी बेसिक वर्ड. देयर इज नथिंग एक्सोटिक अबाउट मुल्क. इट्स अ बेसिक वर्ड. तुम्हें लगे कि एक्सोटिक है तो पोएटिक वो वर्ड. अरे दैट इज माय होल पॉइंट, इट इज बेसिक वर्ड. लेकिन हम लोग को फिर भी अच्छा लगता है बिकॉज वी डोंट टॉक लाइक दैट. तो इसलिए हमको बेसिक चीजें भी अच्छी लगती है. So if Bollywood is picking on these words, it is because it is catering to the need. लोगों को मजा आता है ऐसी बातें सुनने में, because they ठीक है. I understand the point. I understand the point. This is misrepresentation. हाँ, ठीक है. तुम्हें एक सेकंड, तुम्हें उर्दू सुनने में मजा आता है ना, तो पहली बात तो इंडिया में भी उर्दू बोलने वाले बहुत अच्छे बतेरे पड़े. दूसरी बात, ठीक है, पाकिस्तानी उर्दू सुनने में मजा आता है, आई गेट इट. मेरे भाई भी जब किसी को हिंदी में बात करते हुए सुनता है ना तो उसे फौरन हंसी आती है, बहुत ही एक्साइटिंग लगता है, क्योंकि उसे लगता है जैसे स्क्रीन उसके सामने आ गई, बिकॉज दैट इज वेरी मोस्टली हियर हिंदी. सेम. लेकिन तुम्हें पता है उर्दू में कितने अल्फाज हैं? जनाब इज सच अ प्रॉब्लम. It is one word that is repeated. मतलब उर्दू कुछ भी उर्दू बुलवा लो यार, कुछ भी उर्दू बुलवा लो. I'm not defending Janab. I'm just trying to explain कि ऐसा बॉलीवुड क्यों करता होगा. But आदाब and जनाब is really their basic. They don't go beyond it. थोड़ी रिसर्च करके थोड़े और उर्दू के वर्ड डाल दो. It is so. ऊपर से
एक तो ये अच्छा, उनको कोई मुस्लिम दिखाना होगा तो वो इतना ना मुस्लिम आदमी का ऐसे सुरमा लगा हुआ होगा, ठीक है, और सलवार कमीज, वो होगा शलवार कमीज होगा, उसके ऊपर वो अरबी जो वो होता है स्कार्फ वो होगा, ठीक है, और दाढ़ी होगी, और मतलब फिर उसको ना अच्छा वो टेररिस्ट भी दिखा देंगे उसको, ठीक है, कि वैसे ही जो ऐसे सुरमे वाला टेररिस्ट, ठीक है. सो इवन द वे मुस्लिम्स आर पोर्ट्रेट दे आर गिवन अ वेरी डिस्टिंक्ट लुक आल्सो, ठीक है, एंड इस इन वर्ड्स को इतना ज़्यादा जैसे वो उसे टेररिस्ट दिखाएंगे तो वो हम जो हमारे बेसिकली जो मुस्लिम फ्रेजेस हैं लाइक अल्लाहु अकबर या अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब जो भी अरबिक होती है हमारी विच वी यूज सो डेली, जिनके मतलब भी इतने सिंपल से वो, हाँ जैसे तुमने तो मुझसे ये अस्तगफिरुल्लाह तुमने सुना मुझसे, तुम अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की कोशिश करती थी, थिंग्स लाइक दैट. तो दिस इज़ व्हाट वी से इन एवरीडे लैंग्वेज. उसको इतना, एक तो हॉलीवुड ने भी किया आफ्टर 9/11 के हर टेररिस्ट के साथ ये जोड़ देंगे. आई वांट टू टॉक अबाउट दिस ऑल्सो, याद दिलाना बाद में. हाँ, तो पद्मावत में भी ये हुआ था कि यू सी दिस वेरी वेरी बीस्टली मुस्लिम रूलर, ठीक है ना. अब आई एम नॉट डिफेंडिंग एनी मुस्लिम और हिंदू और एनी रूलर ऑफ दैट टाइम बिकॉज वी नो कि वो जो किंग्स और होते थे वो कैसे होते थे, बट in a very clear context in India जहाँ पर मुग़ल रूलर्स आर डीमोनाइज्ड, और उस बेसिस पे आप मुस्लिम जेनोसाइड की फीलिंग और हेट्रेड की फीलिंग बेस करें कि इन लोगों ने हमारे साथ इतना बुरा किया था, अब हम देखते हैं कि हम क्या करें. दिस इज़ द बेसिस ना ऑफ द हिंदुत्वा आइडियोलॉजी कि भाई ये जो मुस्लिम रूलर्स थे माइनॉरिटी में थे फिर भी उन्होंने हम पे जुल्म किया. जबकि इफ़ यू लिसन टू डॉक्टर मोइज़, अकॉर्डिंग टू हिम तो those rulers weren't discriminating based on religion, they were just rulers who were like that क्योंकि they were not discriminating at all. कोई सा भी फैक्टर, हाँ, तो वो जुल्म भी सब पे, हाँ जुल्म भी सब पे इक्वल कर रहे थे, ठीक है, सब पे इक्वल कर रहे थे, मस्जिदें भी तोड़ रहे थे, मंदिरें भी तोड़ रहे थे, सब कर रहे थे, ठीक है. बट दिस आइडिया कि भाई वो डीमंस थे, तो अलाउद्दीन खिलजी को आपने इतना बीस्टली दिखा दिया. आई एम नॉट डिफेंडिंग अलाउद्दीन खिलजी और वट एवर, मुझे तो इतनी नॉलेज भी नहीं है. आई एम सेइंग दैट यू आर फीडिंग इनटू दिस नैरेटिव जिसके आगे आपने उसी एरा का एक किंग रखा जिसके खुद के किंगली प्रॉब्लम्स सिमिलर होंगे, बट यू प्रेजेंटेड हिम एज द सेवियर. वो दूसरी शादी करके हिंदू आ रहा है. ऑल दिस मुस्लिम एक ये भी ना कि ओ ये तो दो तीन शादियां करते हैं या समथिंग लाइक दैट वाला भी एक स्टीरियोटाइप जा रहा होता है. उसमें एक हिंदू रूलर जो है दूसरी शादी करके आता है और उस पर कोई नैरेटिव ऐसा उसमें मूवी में नहीं बना हुआ कि दैट इज़ समथिंग बैड, बिकॉज दैट इज़ प्योर लव, ठीक है. और वो अपनी उसको बचा रहा है एक बहुत ही बीसली मुस्लिम आदमी से. सिटिंग विथ यू गाइज एंड सीइंग, जब मैंने अकेले सिनेमा में देखी थी ना, इस वजह से इन्वायरमेंट्स ऑल्सो मैटर. जब मैंने अकेले बैठ के सिनेमा में पद्मावत देखी थी, और हाँ मैंने सिनेमा में 3D ग्लासेस लगा के पाकिस्तान में पद्मावत देखी थी, यहाँ रिलीज़ हुई थी, आजकल नहीं हो रही इंडियन मूवीज़ सिनेमा में रिलीज़. तो उस वक्त मुझे इतना उसमें कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई. लाइक आई डिडंट फील वियर्ड. जब मैंने मलेशिया में बैठ के तुम लोग के साथ देखी तो वो सीन चेंज हो गया. देन इट वाजंट, आई वाजंट दिस ओवर प्रिविलेज्ड सुन्नी मुस्लिम इन अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट जहाँ मेरा रिलीजन वाजंट अ थ्रेट टू मी एट ऑल बट वाज एक्चुअली अ सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है. वहाँ पर आई नो कि जो है नाउ आई एम आउटसाइड इन द वर्ल्ड जहाँ पर हर किस्म का नैरेटिव मेरे रिलीजन के बारे में चलता है. एंड दैट वाज स्टिल अ वेरी वेरी सेफ स्पेस. लाइक यू गाइज वर अ वेरी वेरी सेफ स्पेस फॉर मी. लेकिन फिर भी उस स्पेस में बैठकर जब मैं पद्मावत देख रही थी और ये कांस्टेंट ये हो रहा था ना कि अलाउद्दीन खिलजी बैठा है तो पीछे ये अल्फाज सारे आ रहे हैं कि ओ कुरान की रेसिटेशन हो रही है या अजान हो रही है या वो अल्हम्दुलिल्लाह या ये बोल रहा है, और वो इतना बीस्टली है कि एक इतने बीस्टली आदमी के साथ देर कनेक्टिंग, कॉन्स्टेंटली कनेक्टिंग द रिलीजन, एंड द अजान एंड द कुरान एंड ऑल दीज वर्ड्स आर माई रिलीजन. तो इसको एक कनेक्शन हो रही है. इट वॉज सो अनकम्फर्टेबल टू सिट इन दैट स्पेस एंड लिसन टू इट डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट वॉज अ सेफ स्पेस फॉर मी, ठीक है. आई कैन नॉट इमेजिन what Muslims must feel like in India when they constantly see this conditioning. क्योंकि मैं तो बहुत ही एक privileged aspect से बोल रही हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है what they go through और what minorities here go through, ठीक है. तो उसको it was Islamophobic in the sense कि एक narrative है जहाँ पर एक constant conditioning होती है जिसमें आप दो चीज़ों को जोड़ते हैं, डिमोनाइजेशन बुरी
on every Muslim religion, and you did that more and more, and you fed it to the people. और उसके आगे आपने एक बहुत ही saintly और बहुत ही, even the lightning used in Padmavat is like that. It is very dark and blue and dingy for Alauddin Khilji, and it's very golden and sunny and bright for Shahid Kapoor ka character. So you fed into that narrative more. It's a very in a country distinct, where it was a very Islamophobia is such a problem. You are on the brink. I won't even say now. Some people are saying you're not even on the brink of genocide. You've actually dipped your feet in genocide. So I mean, that was a problem for me. The portrayal of it was a the very Muslim and the strict, feeding into the stereotype. वो बहुत ही स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रास्ट दिखाया था विलन और हीरो का, एंड उसमें बहुत ही क्लियरली था कि कौन बुरा है कौन खराब है, द गुड एंड द इविल, द गुड एंड आई थिंक गोइंग बैक टू व्हाट यू वर डिस्कसिंग पहले कि जो बाइनरीज होती है ना, जब दीज गोरास के और इनकी जो सेम बाइनरीज बनी थी, सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड और good or savage, I think all of these binaries are again these are simplistic populist narratives जो आप बेचते हैं. they are also coming, they are again coming into play. I want to make this one point which I think gives us a little hope when you were talking about this now, that you were watching it with us and it was a safe place for you, but उसके बावजूद भी हम नहीं समझ पाए ना. It was later when you were talking about you told me how uncomfortable it was for you. मेरे को नहीं आइडिया था कि it was मैंने उसको उस एंगल से देखा ही नहीं, बिकॉज मैं समझ ही नहीं पाई ना कि how you must feel. मैं नहीं समझ पाई. तो बट खैर दिस मेक्स मी थिंक, आई एम नॉट श्योर, इट मेक्स मी लिटिल होपफुल, क्योंकि आजकल ये देखने का तरीका बदल रहा है. कि पहले कम्युनल वॉचिंग होती थी ना, कि ये OTT प्लेटफॉर्म से थे नहीं, इट वॉज नॉट ईजी टू वॉच मूवीज ऑन लैपटॉप या फिर टीवी अपने खुद के घर के कंफर्ट में. पहले नई मूवीज आती थी तो सबसे पहला तरीका होता था कि आपको हॉल में जाके देखनी पड़ेगी. अगर वो टीवी पे आती थी, टीवी में बहुत दिनों बाद आती थी, एकदम से नहीं आ जाती थी. आजकल तो आ जाती, लेकिन पहले नहीं आती थी. तो पहले कम्युनल वॉचिंग होती थी बहुत. तो लेकिन आजकल इंडिविजुअल तरीके से लोग सोलो वॉचिंग होने लग गई है. तो आई थिंक ये भी एक नया एंगल दे रही है. जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, जब यूरी आई थी ना वो सर्जिकल स्ट्राइक, तो मैं हॉल में देखने गई थी, वनीशा और मैं देखने गए थे. मूवी चल रही है और फिर जो ऐसे मेजर सीन्स थे कि ना इंडियन मिलिट्री इज किलिंग लाइक इज अटैकिंग द पाकिस्तानी मिलिट्री, लोग यहाँ पे खुश हो रहे कि अरे बढ़िया है, मार दिया मार दिया मार दिया. मैं ये नैरेटिव तो भूल जाओ, चलो एक बार को ये नैरेटिव तो भूल जाओ. चलो ठीक है, यू आर अ इंडियन एंड यू आर हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि चलो ठीक है वी आर स्ट्राइकिंग बैक एंड यू आर हैप्पी दैट वी आर विनिंग. तो चलो ठीक है, यू कांट, नोबडी कैन गिव लाइक नोबडी, ये जो ना बायस, नोबडी कैन गेट अवे विद इट. मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती. सेम थिंग इट वुड बी विद यू ऑल्सो. अगर तुम वहाँ पे बैठोगी, कोई पाकिस्तान में बैठ के देखोगी, इफ पाकिस्तानीज आर विनिंग यू विल बी हैप्पी अबाउट इट. क्रिकेट ही देख लो ना. तो ये बायस तो मैं किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही कि पीपल कैन गेट अवे विद दिस बायस. लेकिन इफ यू ब्रेक इट डाउन, जैसे मैंने तो काफी उस पर्सपेक्टिव से देखा था, इट इज अ वेरी वायलेंट थिंग व्हिच इज हैपनिंग. आई वुडंट वांट टू सेलिब्रेट दैट. बट लोग खुश हो रहे थे कि मतलब, बट क्यों, वाई, मैं नहीं समझ पा रही थी. मुझे तो बुरा ही लग रहा था कि ये क्या हो रहा है. इट्स लाइक यू आर सेलिब्रेटिंग और एंजॉइंग वायलेंस. ठीक है, तो आप एक हॉल में बैठ के सबके साथ ऐसी चीजें देख रहे हो और लोग आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो यू गेट इनटू द होल मूड. यू स्टार्ट एंजॉइंग द होल प्रोसेस. जैसे कोई भी चीज उठा लो ना, आप साथ में अकेले पार्टी कर रहे हो, बहुत लोगों के साथ पार्टी कर रहे हो, ऑब्वियसली यू विल एंजॉय पार्टी विद अ लॉट ऑफ अदर पीपल ना, बिकॉज देयर इज अ वाइब, देयर इज अ मूड. तो कम्युनल वॉचिंग में ऐसे वाइब्स, मूड बन जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर वाचिंग दिस. You kind of reinforce each other's these जो भी इमोशंस हैं, आप एक दूसरे के अंदर फील कर रहे हो. हाँ, आप दूसरों के इमोशंस पे पिक करते हैं, you start celebrating it. This is very human. It's and then I think the joy isn't just from, I think the joy that isn't just from seeing on the screen and feeling oh we're winning. It's also on this communal feeling that I'm now feeling, this unitedness that I'm now feeling. Yeah, it's a very participatory joy that all of you are sitting together and you're enjoying it. ठीक है, तो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ कम्युनल वॉचिंग. बट लेकिन मुझे लगता है आई एम अ लिटिल होपफुल व्हेन इट कम्स टू सोलो इंडिविजुअल वॉचिंग, बिकॉज इट गिव्स यू मोर टाइम टू रिफ्लेक्ट. कि आप अकेले बैठ के देख रहे हो, आप दूसरे एस्पेक्ट समझ सकते हो, आप चीज़ों को दूसरे एंगल से देख सकते हो. बिकॉज आप सबके साथ देख रहे हो, जिस चीज़ में दूसरे खुश हो रहे हैं, दूसरे रो रहे हैं, यू टेंड टू फॉलो द सेम पाथ. आपको स्पेस नहीं मिलती
ठीक है, और अपन खुद अकेले बैठ के देख रहे हैं, मैं 10 बार उसको पॉज करके देख सकती हूँ, मैं रिवाइंड करके देख सकती हूँ, मैं एक मूवी देखने के मैं ऐसा करती हूँ, आई वॉच ए मूवी आई गो बैक अगेन, एंड जब मैं वापस देखती हूँ तो मुझे बहुत नए पर्सपेक्टिव समझ में आते हैं. तो वो लिबर्टी आपको सोलो वॉचिंग इज हैपनिंग ऑन अ मास लेवल, या इज इट जस्ट लाइक middle class, upper middle class that can do that, you know? But don't you think that is a good point to begin with? मतलब चलो ठीक है, मैं obviously there are a lot of other, ठीक है सबको एक्सेस नहीं होता, बट लेकिन पता है क्या, एक्चुअली नो, जैसे इफ यू इंडिया का बताऊँ, दिस होल डिजिटल रिवॉल्यूशन इट इज अ थिंग इन इंडिया नाउ. तो मैं आजकल वो फोन पे ई वॉलेट्स वगैरह, फोन पे वगैरह, गूगल पे, सब्जी वाला भी बेचारा आजकल फोन पे और पेटीएम ई वॉलेट्स लेके खड़ा होता है, सबके पास फोन है. पीपल आर वॉचिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, लोग अकेले देख रहे हैं. एक सेकेंड, डिजिटल रेवोल्यूशन किसी को सुनाई दे रहा है, किसी पावरफुल पर्सन को पाकिस्तान में? कैन यू प्लीज मेक दैट हैपन हियर एज वेल? इंडिया हमारे साथ तो नहीं, सब्जी वाला खड़ा हुआ पेटीएम लेके, ये क्या बदतमीजी है. नहीं, इट्स प्लीज कंटिन्यू. डिजिटल करेंसी वगैरह इट्स अ थिंग इन इंडिया. तो आजकल सबके पास फोन है, तो पीपल आर डूइंग दिस इंडिविजुअल सोलो वॉचिंग. एक्चुअली या आई हर्ड अबाउट इट कि जैसे डेटा चार्जेस कम कर देना वगैरह से बहुत ही इफेक्ट हुआ था. अरे जियो आया था भाई, जियो ने डेटा चार्जेस कम नहीं, जियो ने इंटरनेट फ्री कर दिया था. कॉलिंग फ्री है, इंटरनेट फ्री है, मतलब एक पॉइंट के बाद आपका इंटरनेट का स्पीड कम हो जाएगा, बट बंद नहीं होएगा. तो सबके पास फोन है आजकल, एवरीबडी इज वॉचिंग, हर कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहा है. तो आई थिंक ऑलरेडी वी आर पास्ट दैट स्टेज. बट नाउ वी आर कमिंग ऑन. ये तो एक तुमने कहा ना कि ठीक है, मे बी सोलो वॉचिंग में रिफ्लेक्ट करने का टाइम हो, बट देन व्हाट द प्रॉब्लम लाइज अगेन विद द कंटेंट. वही हम बोल रही हूँ, ये उम्मीद ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं कि जो क्रिटिकली जो कंटेंट बन रहा है उसे कोई देख ले, क्योंकि कंटेंट तो चेंज हो ही नहीं रहा. वही तो मैं वही बोलना चाहती हूँ फिनिश कि ना, कंटेंट ही सही नहीं है, क्योंकि वो सेम तरह के लोग ही सेम तरह का कंटेंट बनाए जा रहे हैं. whatever sells, वही हीरो लाके, वही घिसी-पिटी स्टोरी लाइंस लाके, मास कमर्शियल बॉलीवुड मूवीज तो यही बताती हैं, और जो दूसरी मूवीज होती है वो चलती नहीं है. लोगों को आई रिमेम्बर जब वो वाला अटैक हुआ था ना, ये उरी था क्या था, नहीं पुलवामा अटैक के बाद जब वो नहीं पूरी एक वो हुई थी, हाँ ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला ही, ये बाद में बनी है मूवी, ठीक है. हाँ. तो जब ये सर्जिकल स्ट्राइक वाली चीज़ एक्चुअली हुई थी ना, जब ये सर्जिकल स्ट्राइक वाली चीज़ ऐसे हुई थी ना असल में, तो ये बहुत टाइम बाद था. अच्छा, नाउ व्हाइल यू गाइज हैव नॉट बीन एक्सपीरियंसिंग वॉर, द थिंग इज़ दैट वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग वॉर, एंड दैट इज़ अ वॉर ऑन टेरर, बिकॉज वी हैव अ बॉर्डर विथ अफगानिस्तान, ठीक है. और उस वॉर ऑन टेरर की वजह से कि भाई पाकिस्तान के थ्रू नेटो ट्रक्स पास होते थे, ठीक है, सारी सप्लाईज उसमें ले जाकर, तो कराची पे पोर्ट पे आते थे और हमारे सामने से वो निकलते थे. तो इस वजह से कराची में भी फर्स्ट हैंड हमने बहुत बॉम्ब ब्लास्ट देखे, ठीक है. मेरा जो एक सर्टन टीनेज वाला टाइम गुजरा है ना, ये तो सारा गुजरा ही इस डिस्पॉन्डेंसी में है. लाइक आई ग्रू अप विद दिस कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ देयर इज़ जस्ट डूम एंड ग्लोम एंड नथिंग इज़ गोइंग टू गेट बेटर, क्योंकि हमारे अंदर एक कॉलोनियल नैरेटिव भी सेट होता है ना कि द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव आर बिकॉज ये कौम ही बुरी है, या ये कौम ही जाहिल है, या यू नो समथिंग लाइक दैट, कि ओ ये तो जाहिल अवाम, जाहिल लोग, जाहिल जनता, जो भी, तो देश का तो यही हाल होगा. इस टाइप का जो नैरेटिव हमारे यहाँ हर चीज़ में चलता है ना, तो ऑब्वियसली वो नैरेटिव मेरे अंदर भी था. तो फिर मतलब मुझे ये लगता था कि ओ दिस इज़ प्रॉब्ली दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज वी डिज़र्व इट, एंड आई डिडंट नो दैट देयर वुड एवर बी अ एंड इन साइट, लाइक देयर वुड एवर बी अ टाइम वेयर आई डोंट गेट अ न्यूज़ ऑफ अ बॉम्ब ब्लास्ट. मेरे खुद के घर के शीशे हिल चुके हैं व्हेन देयर वाज अ बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है. आई रिमेंबर कि कुछ ऐसे करके आवाज़ होती थी और एम्बुलेंसेस की आवाज़ आती थी, और हम जाकर ना टीवी खोल के देखते थे कि क्या है इसके अंदर, क्यों एम्बुलेंसेस पास हो रही है. और मेरा घर भी उस वक्त ऐसे इलाके में था कि जहाँ से वो एम्बुलेंसेस का आना जाना होता था. तो वी हैव लिव्ड विद दिस ट्रॉमा एंड फियर, जो प्रॉब्ली इंडिया में बहुत से इंडियंस ने फर्स्ट हैंड नहीं एक्सपीरियंस किया होगा, और बहुत से पाकिस्तानीज़ ने भी नहीं किया. कराची में बहुत ज़्यादा था, और उधर केपी की तरफ बहुत था. तो व्हाट दोज पीपल हैव गॉन थ्रू इज़ अनइमेजिनेबल, बट जस्ट प्रिविलेज्ड खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है.
जहाँ से डॉक्टर मोइज़ भी है, ठीक है। और बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो पठानों का इलाका है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू एंड पोलिटिकली हॉरिबली इनकरेक्ट, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि 2000 पश्तून्स एंड पख्तून्स और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट ट्राइब्स होती हैं, बट दिस इज़ जो नॉर्थ वेस्ट साइड पे उसके साथ अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है और उनका वहाँ से शेयर्ड कल्चर और हेरिटेज है। तो व्हाट दोज पीपल हैव गॉन थ्रू तो अनइमेजिनेबल, कांट इवन टॉक अबाउट इट। यहाँ भी लोगों को समझ नहीं आता, ठीक है। बट इवन एज अ प्रोटेक्टेड प्रिविलेज्ड अर्बन पाकिस्तानी, मैंने भी इतना क्लोज देखा है या कॉन्स्टेंट ये न्यूज़ पे, न्यूज़ वॉज जस्ट ऑलवेज फिल्ड विद दिस। मेरे दादा की डायरियाँ उठा के लिखो, वो डायरी लिखते थे कि आज ये हुआ ये हुआ। मैंने एक बार डायरी उनके इंतकाल के बाद उठा के देखी थी, तो हर 2 डेट्स बाद, हर 4 डेट्स बाद ऐसे कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा होता था मुल्क में। सो वी वर कॉन्स्टेंटली इनंडेटेड फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स विद दिस। फिर ये थोड़ा कम हो गया, तो जब ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला मामला हुआ ना, तो फॉर अस इट वाज अगेन थोड़ा सा ट्रॉमेटिक। एंड आई एम श्योर यहाँ भी जंगली लोग कर रहे होंगे सेलिब्रेट, बट देयर वर लॉट ऑफ पीपल आई नो अराउंड मी एंड ऑन माई ट्विटर हु वर जेन्युइनली वरिड, एंड आई वॉज स्केर्ड बिकॉज वी हैड गॉन थ्रू दिस थिंग। और मुझे लगा अच्छा कम हो गया, तो फिर जब ये ऐसा लगा ना वॉर टाइप की चीज़, तो इट वॉज, तो वो ट्रॉमा दोबारा आ रहा था, ठीक है। जब यहाँ ये हो रहा था तो वहाँ पर बॉलीवुड के एक्टर्स, ठीक है, एंड आई एम सेइंग बॉलीवुड ओनली एंड सिंगलिंग आउट बॉलीवुड ओनली बिकॉज दे डू हैव द पावर, दे डू हैव द एक्सपोजर। तो बॉलीवुड के एक्टर्स क्या कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट ओ जय हिंद या समथिंग लाइक दैट, जैसे प्रियंका ने कर दिया था, एंड देन पीपल कॉल्ड हर आउट कि भाई तुम तो UN की एम्बेसडर हो, हाउ कैन यू say things like that, and then she replied in a very bitchy, mean girl, high school way. But उस वक्त one of the things that happened was कि जब ये चल रहा है और ठीक है वॉर होगी नहीं होगी ये वाली चला नहीं, हम डर रहे हैं, बॉलीवुड पागल हो रहा है, वहाँ पर so many बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स went to get, अभी ये मसला ख़त्म भी नहीं हुआ था, and they went to get names registered for their movies इस चीज़ पे, सर्जिकल स्ट्राइक पे बेसिस पे, कि जो मूवी के नाम रजिस्टर करने की इतनी सारी रिक्वेस्ट आई थी दोज अराउंड सर्जिकल स्ट्राइक्स, बिकॉज दे रियलाइज्ड कि ओ यहाँ पर एक, एंड देन फिर बनी भी ना मूवी। तो दिस इज़ द माइंडसेट ऑफ बॉलीवुड, जहाँ वॉर चल रही है, बट देयर वॉर का थ्रेट है, बट दे आर इन सच अ प्रिविलेज्ड प्रोटेक्टेड बबल, दे नो कि आखिर लड़ने तो एक लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास के बंदे को जाना है जिसको आर्मी की नौकरी की ज़रूरत है, सामने तो उसी ने हो जाना है बॉर्डर पे, उसने बॉलीवुड का तो कुछ नहीं लगे छगे, मरेंगी तो दूसरी तरह से लाशें गिरेंगी, तो ये लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास के लोगों की, और सेटिस्फाई होगा हमारा नेशनलिज्म, ठीक है। और चलो मूवी बना लो, नैरेटिव तो वैसे भी सब जगह है, तो हाँ आई अंडरस्टैंड। ये तो क्या मतलब जो जंग लड़ रहा है, जो जंग के बारे में बात कर रहे हैं, these are two different people altogether. मतलब while this is going on, Bollywood didn't have the sensitivity to wait and see कि हो क्या रहा है, कि अच्छा इस वक्त तो दिमाग में कुछ ना आए ना कि ओ वही तो what about my, इंसान की खुद की सेफ्टी ही होती है, खुद की सेफ्टी ही होती है, बट बिकॉज दे आर सच प्रिविलेज्ड रिच पीपल, उस वक्त उनको ये ख्याल भी नहीं आया। आई मीन इट्स नॉट जस्ट फॉर द अदर, आई एम नॉट सेइंग हैव सेंसिटिविटी फॉर अस, have sensitivity for your own country. Going to war for any country is a terrible thing. ये बॉलीवुड रिप्रेजेंटेशन ही है जहाँ पे ना जो रिप्रेजेंट करा कर है, और लोग ऐसे मानते भी हैं कि ना इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को देखने तो अपने एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया पाकिस्तान इंडिविजुअल एज अ कंट्री दे आर अगेंस्ट द इंटरनेशनल रिलेशन। इंडियन डायस्पोरिक कम्युनिटी देख लो, पूरे जहां में तुम्हें इंडियंस मिल जाएंगे, एंड दे आर वेरी हैप्पीली, दे आर वेरी पीसफुली नाइसली टॉकिंग टू पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, पीपल फ्रॉम अदर ओरिजिन्स। तो मसला ये नहीं है दैट दे हैव अ प्रॉब्लम। आई थिंक रिप्रेजेंटेशन ही ऐसा है कि वो हमेशा उसको इतने वायलेंट फॉर्म में दिखाते हैं। अब अपन दोनों को ही देख लो, गिवन द फैक्ट आई अंडरस्टैंड इट्स अ यूनिवर्सिटी स्पेस एंड वी आर इन दैट एज, but अपन दोनों एक दूसरे, we have talked about religion, we have talked about politics, we have talked about everything. We make inappropriate jokes also on religion, our idea of religion, our idea of politics. अपन एक दूसरे के कत्ल करने नहीं बैठे. It is not just about the equation we share. We have a lot of other desi people also. अब जैसे और अपन desi reminds me, then we are using this word desi because अगर on a university
campus, when we are using this term Desi, we are referring to both Indian and Pakistanis. It refers to all of us. It's because we have so much shared culture, खाना इतना similar होता है, history, shared history. So we're talking about Desis. When we're talking about Desis, I will be very very honest. ठीक है, I have felt more comfortable speaking in my version of Urdu in front of you, जिसके अंदर मेमनी के वर्ड्स भरे होते हैं, then I did going to school here, क्योंकि यहाँ पर स्कूल में एक तो ऑब्वियसली वो जो एक नेशनलिस्ट आइडिया होता है ना कि ओ अगर ये लैंग्वेज है आपकी, जैसे तुम्हारे यहाँ हिंदी है तो वो हिंदी पूरे कंट्री की लैंग्वेज है, हालांकि वो होगी नहीं फिर भी वो है। तो उर्दू इस तरीके से पूरे कंट्री की लैंग्वेज नहीं है, माइनॉरिटी की, लेकिन वो है क्योंकि वो नेशनल है, और अगर आपको नहीं आती तो हिंदी का भी यही है, ठीक है सेम। तो इस नैरेटिव से जब स्कूल में जाते तो ठीक है, टीचरों से भी डांट पड़ रही होती थी, क्योंकि यहाँ पर सही उर्दू होती है मेरे या मुझे, जैसे तुम मेरे को बोलती हो मैं भी मेरे को बोलती हूँ, क्योंकि वो वाले इन्फ्लुएंसेस भी तो है ना उस तरफ के, गुजराती मेमनी जो इन्फ्लुएंसेस हैं, ठीक है। तो उर्दू परफेक्ट नहीं है, तो उधर जब स्कूल में जाते थे ना, आई हैव ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो, नॉट जस्ट इन फ्रंट ऑफ टीचर्स, ऑलवेज फेल्ट अफ्रेड, क्योंकि इवन दो मेरी उर्दू बहुत साफ़ है, वरना मेमनी एक्सेंट बहुत ही क्लियर होता है, हमारी जो ओल्डर जनरेशन्स हैं उनका मेमनी एक्सेंट बहुत ही क्लियर होता है। तो मुझे लगता था कि वो ये मेमनी एक्सेंट तो इज़ कोई इग्नोरेंट इंसान की निशानी, ठीक है, उर्दू साफ़ होनी चाहिए। और दूसरा जो मेरे कैजुअल घर में वर्ड्स यूज़ होते हैं ना, जो पता नहीं मेमनी होते हैं और वो उसमें आ जाते हैं, मुझे उसका उर्दू वर्ड भी नहीं पता होगा, मुझे लगता होगा वो उर्दू है, तो वो कॉन्वर्जेसन में अगर स्लिप आउट हो जाए ना तो फिर वो मजाक उड़ता था कि ये क्या वर्ड है और ये क्या होता है, और तो कोई ऐसा सीरियस नहीं था, कोई बुलिंग नहीं थी, मजाक था। लेकिन जब मैं तुमसे मिली तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओहो what I have is normal, because जो मेरी एक एथनिसिटी है उसका असर मेरी लैंग्वेज पे आता है, और वो कहीं जैसे तो बिकॉज मे बी बिकॉज राजस्थान एंड गुजरात आर क्लोजर, और फॉर सम रीज़न बहुत से ऐसे वर्ड है जो तुम बोलते हो मुझे लगता है अरे हम भी इस किस्म का वर्ड यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर एक आइडेंटिटी क्राइसिस मेरा भी सॉल्व होना शुरू हुआ when I met you, because there are so many ways in which I am not similar to my Urdu speaking friends, but I am similar to you. वो तो एक एक्सेप्टेंस तो है ना, अपन को ऐसे अलग यूनिक प्राणी तो है नहीं कि अपन लोग के ऐसे पता नहीं हजारों में से अपन दोनों निकले कि वी आर सो एक्सेप्टिंग, अपने जैसे और भी हैं। या तुम यूएस चले जाओ, आईटी में तुम्हें इंडिया पाकिस्तानी वाले देसी लोग ही मिलेंगे, यूएस चले जाओ, सारे गोरे देशों में चले जाओ तुम, तो देयर आर पीपल हु आर लिविंग, देयर आर देसी पीपल हु आर लिविंग टुगेदर, बट उसके बाद अब हाँ, और एक और चीज़ अबाउट दिस आर्टिफिशियलिटी ऑफ बॉर्डर्स, इंडिया इज़ वन जिसके अंदर आप जो है बहुत ही एक बेसिक लेवल पे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया टाइप डिवीजन कर देते हैं, हालांकि अगेन साउथ इंडिया इज़ वेरी डाइवर्स एंड नॉर्थ इंडिया इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ वो, ठीक है। अब बहुत से इंडियंस हैं हु वुड शेयर अ लॉट मोर सिमिलैरिटीज़ कल्चरली, लैंग्वेज वाइज, हिस्टोरिकली विद पाकिस्तानीज़ than they would do with North Indians, with South Indians, क्योंकि वो एक डिफरेंट कल्चर है, ठीक है। तो हमारी जो कनेक्शन है फॉर एग्जाम्पल वॉज डिफरेंट बिकॉज लैंग्वेज की एक कनेक्शन थी, कल्चर की और फूड की एक कनेक्शन थी, तो जो तुम्हारी किसी साउथ इंडियन से नहीं वैसी, बट स्टिल बिकॉज हम एक अब ह्यूमन लेवल पे यू कैन सी कि ये एक जेन्युइन हिस्टोरिकली शेयर्ड कनेक्शन है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी आइडेंटिटी एक आर्टिफिशियल स्टेट से बना देंगे तो फिर यू विल लूज आउट ऑन दिस जेन्युइन कनेक्शन एंड जस्ट फोर्स के भाई नहीं, जो इस साइड ऑफ द बॉर्डर है वो मेरा है और जो उस साइड ऑफ द बॉर्डर है वो कुछ और है, और वो एलियन है और वो मेंटल बॉर्डर्स है ना, आई वाज रीडिंग कि दिस जियोग्राफिकल मेंटल बॉर्डर्स अपने दिमाग में ही होते हैं, और ये बॉलीवुड में कुछ नहीं करा, दे आर जस्ट लाइक लेजिटिमाइजिंग, मैं ऐसे वर्ड्स क्यों बोलती हूँ जो मुझसे एक बार में बोले नहीं जाते, बॉलीवुड इज डूइंग नथिंग मैं फंबल करती हूँ या मेरे डुमक्को की वो बैटरी जा रही है, बट बॉलीवुड इज डूइंग नथिंग, दे आर जस्ट लाइक रीइंस्टेटिंग दीज मेंटल बॉर्डर्स वी हैव इन माइंड। और पता है आई वाज रीडिंग दिस आर्टिकल, देयर वाज लाइक कि फिजिकल बॉर्डर्स एग्जिस्ट भी नहीं करते, अगर हो भी तो इट इज़ वेरी इजी टू गो पास दीज फिजिकल बॉर्डर्स, बट passing this mental borders it's almost impossible because इतने ज़्यादा अपन ने इनको Are you trying to say कि मुझे हमें ऐसे ही डर लगता रहता है हम एक्चुअली बॉर्डर एक दूसरे के क्रॉस कर सकते हैं? आ जाओ अगर इतना ही आसान है, लेट बॉर्डर तोड़ दो, आ जाओ समझौता एक्सप्रेस। तो उसे देखकर ना मुझे समझौता एक्सप्रेस सुन के मुझे खौफ उठता है आशिमा, सिर्फ मुझे वो ब्लास्ट याद आता है और कुछ याद नहीं आता। समझौता एक्सप्रेस मुझे पूरा पता भी नहीं है वो क्या है,
टू बी ऑनेस्ट मैंने दूर दूर से थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं समझौता एक्सप्रेस सुनती हूँ, मेरे अंदर यार चाइनीज में कुछ तो बोलो, मेरा ये वाला खत्म हो गया, कुछ तो बोली चाइनीज में और बंद हो गया ये वाला। एपिसोड रैप अप करो फटाफट। Okay, this was us, you guys. Please leave comments and like, share, subscribe. Bye bye.